Hello dear student, welcome you all again. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of diseases of field and horticultural crops and their management part 1. In previous classes, we had already completed two field crop which is rice and groundnut, and today we will start the another field crop which is bajra or pearl millet. So we have to study two most important diseases which is downy mildew and the another one is ergot. So we'll start from the downy mildew. Downy mildew is also called green ear. Why? I tell you later when I will describe you about the symptoms. So let's start up from introduction. So in introduction, pearl millet or bajra is the third most important rain-fed cereals crop of Indian grown over 9 million hectare with annual production of 9.5 million ton, and globally it is sixth most important cereal grain crop cultivated on more than 6 million hectare area, which covers the 50% grain production area all over the world. So in pearl millet, it is a C4 plant and has a very high photosynthesis efficiency and dry matter production capacity. So, powdery mildew primarily grown for food and for dry fodder purpose, and the grain is mainly consumed by the humans and the dry fodder consumed by the various animal. So, uh, pearl millet downy mildew or green ear disease of bajra is a very common disease, and it has been reported from several countries including India, Iran, Israel, China, Fiji, Japan and the other countries where bajra crop is grown. And it is the most devastating disease in bajra all around the world. In India, the disease was first reported by Butler in 1907, who considered the disease to be sporadic in nature. Since then, the disease of bajra has been reported from all over the state where bajra is cultivated as one of the crop of kharif season, and this is the most important disease of bajra also. So, according to Mathur, Dalila and Nine and Singh have estimated the loss to be as high as 27 to 30%, which is a very high uh, ill loss. So, how the symptom appears on the disease, let's discuss about that. So the pathogen, first the pathogen is caused by a fungus. The pathogen name is Sclerospora graminicola. This pathogen is a is cause systemic infection, means the symptoms as a result of a systemic infection. So mostly symptoms start from the leafy area, means leaf symptoms begin as a chlorosis at the base, and successively higher leaves show progressively greater chlorosis, means chlorosis के सिम्टम्स लीफ में दिखने स्टार्ट होते हैं और पूरे प्लांट में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. क्लोरोसिस मीन्स क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि क्लोरोसिस एक सिम्टम्स को कहते हैं, और इस सिम्टम्स में क्लोरोसिस में प्लांट का कलर चेंज हो जाता है, जिसमें मोस्टली प्लांट पेल येलो टू येलो और ऑरेंज कलर में शो करता है सिम्टम्स. सो जो इन्फेक्टेड क्लोरिटिक लीफ होते हैं वह अबेंडन वाइंड एसेक्सुअल स्पोर को फेवर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं जस्ट बिलो द लीफ, यानी कि लोअर सरफेस पे, जहाँ लीफ के जिस एरिया पे क्लोरोसिस के सिम्टम शो हो रहे हैं उसी के जस्ट लोअर सरफेस पे वाइट सेक्सुअल स्पोर के ग्रोथ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से इसे डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है. डाउनी मिल्ड्यू मतलब जब लीफ के नीचे सरफेस पे अगर पाउडरी मासेस का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू. लेकिन अगर वह सेम प्रोसीजर ऊपर अपर सरफेस पे भी हो रहा है, यानी कि ऊपर सरफेस पे अगर पाउडरी मिल्ड्यू फॉर्म हो रहे हैं तो वह पाउडरी मिल्ड्यू कहलाते हैं, और नीचे फॉर्म होते हैं पाउडर्स तो वह डाउनी मिल्ड्यू कहलाते हैं. सो जो लीफ, सबसे पहले जो सिम्टम्स है बहुत ही सिंपल है. जो लीफ होता है उसमें क्लोरोसिस के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये जो क्लोरोसिस के सिम्टम्स क्या है डिसीज़ के साथ डेवलप करने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं. सेम टाइम पे जहाँ जहाँ पे क्लोरोसिस के सिम्टम्स लीफ में फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं अपर सरफेस पे, उसी के जस्ट नीचे अपोजिट लोअर सरफेस पे वाइट
एसेक्सुअल स्पोरुलेशन दिखाई देता है, यानी कि वाइट स्पोर का फॉर्मेशन दिखाई देता है। इसके अलावा जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं इस डिसीज़ से, उनकी जो हाइट होती है वो रुक जाती है, यानी कि वो स्टंट हो जाते हैं और उनमें पैनिकल्स अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाते, यानी कि जो पैनिकल्स हैं, जो ग्रेन, अगर पैनिकल्स ही निकलेंगे तो ग्रेन फॉर्म नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन लेट कंडीशन में हो तो क्या होता है कि आपके पैनिकल्स तो निकलते हैं लेकिन उनमें एक लीफी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है जिसे हम ग्रीन ईयर कहते हैं। और ये ग्रीन ईयर का जो सिम्टम्स होता है वह क्या होता है, जो हमारा पैनिकल्स होता है उसमें ग्रेन्स की जगह पे जो पूरा का पूरा फ्लोरल पार्ट्स है वह एक लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसके कारण ही इसे ग्रीन ईयर कहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जो फ्लोरल पार्ट हैं वह क्या हो जाते हैं, उनमें लीफी स्ट्रक्चर तो आते ही आते हैं। और यह अगर हम इसे दूर से देखें तो वह कैसा दिखता है, एक ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब एक झाड़ू के समान का स्ट्रक्चर दिखता है। इसके अलावा जैसे जैसे ये डिसीज़ ग्रो करते जाता है वैसे वैसे ग्रीन जो स्ट्रक्चर है उसमें ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर हैं वह हार्ड होते जाते हैं और जो कि लीफी मासेस के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन ईयर्स हैं वह 3 टाइप से ऑब्जर्व किए गए हैं। पहला, या तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो ग्रीन लीफी मासेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड, इन्फ्लोरेसेंस का नीचे का पार्ट है वह केवल ग्रीन लीफी मासेस में कन्वर्ट होगा और जो ऊपर का पार्ट्स होगा उसमें सीड्स बियर हुए होंगे, यानी कि सीड्स रहेंगे और नीचे के पार्ट्स में इन्फ्लोरेसेंस, जो पूरा का इन्फ्लोरेसेंस है वो ऊपर का पार्ट उसमें ग्रेन रहेगा बट नीचे के पार्ट में लीफी स्ट्रक्चर रहेगा। और या फिर जो इन्फ्लोरेसेंस है वह कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, सप्रेस्ड हो जाएंगे और स्मॉल बंच ऑफ लीफी स्ट्रक्चर हो जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो छोटा हो जाएगा और लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें बहुत सारे लीफी स्ट्रक्चर का स्मॉल बंच बना होगा। तो ये थे सिम्टम्स। हम जैसे कि इमेज में देख सकते हैं ये जो पर्ल मिलेट का प्लांट है ये क्या, ये इसका अर्ली सीडलिंग स्टेज है। इसमें अर्ली सीडलिंग स्टेज में आप देख सकते हैं कि कैसे बेस में लीफ में क्लोरोसिस स्टार्ट हो जा रहा है। इस क्लोरोसिस में जो कलर है जो लीफ का वह कैसे हो जा रहा है, लाइट ग्रीन से पेल येलो कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है और यह बेस से स्टार्ट हो रहा है। सो यह लीफ में अर्ली सिम्टम्स शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हेल्दी पर्ल मिलेट हेड्स कैसे होते हैं और जो इन्फेक्टेड ग्रीन ईयर विथ अनस्टेबल ग्रेन। जी, जो सेकंड इमेज आप देख सकते हैं ये यही है ग्रीन ईयर। ग्रीन ईयर में क्या होता है, जैसे कि आप हेल्दी प्लांट में देख सकते हैं कि उसमें एक छोटे छोटे ग्रेन्स उसमें फॉर्मेशन हुए हैं, जबकि जो अनहेल्दी प्लांट है उसमें ग्रेन्स की जगह पे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गए हैं जो कि पूरी की पूरी तरह से इसमें ग्रेन फॉर्मेशन नहीं हो पाता और इल्ड को लॉस कर जाता है। तो ये था सिम्टम्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी। सो इटियोलॉजी में आप देख सकते हैं इसकी टैक्सोनॉमिकल ट्री को। ये जो पैथोजन है वह ओमाइसीट्स क्लास का है। इसका जो ऑर्डर है वह स्क्लेरोपोरेल्स है, फैमिली है स्क्लेरोपोरेसी, जीनस है स्क्लेरोपोरा और स्पीसीज़ है ग्रामिनिकोला। जो मोस्टली जो फंगस होता है इसमें 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल स्पोर और दूसरा होता है सेक्सुअल स्पोर। तो जो एसेक्सुअल स्पोर होता है उसमें स्पोरेंजिया एंड जू स्पोर दोनों ही फॉर्म होते हैं। जो इमेज में आप ये देख रहे हैं वो है आपका स्पोरेंजिया, जो जबकि आपका जू स्पोर होता है उसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है और इसमें यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जो स्पोरेंजिया होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, हाईलाइन होती है। इनके अलावा जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो इलिप्सॉइड और इलिप्टिकल और पैपिलेट है और इनका जो साइज़ है वो मेज़र करता है 15 to 22 इंटू 12 to 21 माइक्रोमीटर। ये था आपका स्पोरेंजिया। इसके अलावा जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरेंजियो 4 के ऊपर फॉर्म होते हैं। ये जो स्पोरेंजिया होते हैं यानी कि जो स्पोरेंजियो 4 होते हैं वह हाईलाइन होते हैं और इनका जो साइज़ होता है वह होता है 100 to 250 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 18 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, यानी कि इनका जो लंबाई है वो 100 से 250 माइक्रोमीटर है और इनकी चौड़ाई है वो 18
माइक्रोमीटर है। इसके अलावा जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं उनका जो एपेक्स होता है वो डिवाइडेड होता है, जिसमें सेवरल शॉर्ट ब्रांचेस लगे होते हैं। ये जो ब्रांचेस होते हैं वो 3 to 4 सेवरल ब्रांचेस इसमें लगे होते हैं, यानी कि स्पोरेंजियोफोर में 3 से 4 ब्रांचेस लगे होंगे, जिसमें एपेक्स में डिवाइडेशन के कारण फॉर्म हो रहा है। और एट द टिप ऑफ द एवरी ब्रांच अ शॉर्ट स्ट्रिग्मा अराइज मीन्स जस्ट स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर जो एपेक्स है वह 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होने के हो रहा है। तो डिवाइड होने में जो उसमें एक स्ट्रक्चर अराइज हो रही है उसे हम कहते हैं स्ट्रिग्मा। तो ये जो शॉर्ट स्ट्रिग्मा अराइज होती है जिसके ऊपर ही स्पोरेंजियोफोर डेवलप होता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बंच ऑफ स्पोरेंजियोफोर एक सिंगल स्पोरेंजियोफोर में बंच ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्म हो चुके हैं। और ये सेवरल स्पोरेंजियोफोर इसलिए फॉर्म हुए हैं क्योंकि उसमें स्ट्रिग्मा फॉर्म हो चुका है। सो ये था आपका एसेक्सुअल स्पोर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्सुअल स्पोर की तरफ। तो जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो होता है oospore. oospore germinate in multiple ways by vesicle like structure by both vesicle and germ tubes. इसके अलावा जो oospore होता है वो स्मूथ होता है, ग्लोबस होता है, जिसका साइज होता है 19 to 40 माइक्रोमीटर इन डाया। इसके अलावा इसका जो थिक वॉल होता है वो येलोइश ब्राउन कलर की होती है, और इसका जो वॉल का साइज होता है वो होता है 1.9 to 2.9 माइक्रोमीटर। तो ये था ईटियोलॉजी। नेक्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं कि वो टॉप पे जो है 2 इमेजेस हैं वो उसके सिम्टम शो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इमेज है वो उसका स्पोरेंजियोफोर का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। नीचे के स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट इमेज है आप उसमें देख सकते हैं कि वह स्पोरेंजिया है, एंड नेक्स्ट उसके बाद जूस्पोर, एंड नेक्स्ट के बाद है उसका oospore. सो ये है इसका ईटियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसीज साइकिल की तरफ। सो जो पैथोजन है वह सॉइल बॉर्न होता है और एक्सटर्नली सीड बॉर्न भी होता है, यानी कि यह सॉइल बॉर्न तो है ही है, साथ में यह सीड बॉर्न भी है, लेकिन जो सीड बॉर्न होता है वो एक्सटर्नल होता है। सीड बॉर्न 2 तरह से पैथोजन होते हैं, एक तो एक्सटर्नली सीड बॉर्न और दूसरा होता है इंटरनली सीड बॉर्न। इंटरनली सीड बॉर्न में मोस्टली क्या होता है, जो पैथोजन होते हैं वो सीड के एम्ब्रियो तक को इन्फेक्शन फैला देते हैं, इसलिए उन्हें इंटरनली कहा जाता है। लेकिन एक्सटर्नली तब कहा जाएगा जब वो केवल उसके सीड कोट पे इन्फेक्शन उनका रहता है या वो प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से हो गया या पैथोजन सॉइल बॉर्न एंड एक्सटर्नली सीड बॉर्न। सो जो इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो मोस्टली विंड बॉर्न स्पोरेंजिया के थ्रू ही फैलता है। सो हम पहले प्राइमरी इन्फेक्शन के में देखते हैं। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली किसके थ्रू हो रहा है, oospore और माइसीलियम के थ्रू हो रहा है। ये oospore और माइसीलियम क्या है, वो सीड में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो कि डिसीज ईयर प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद आफ्टर फेवरेबल कंडीशन जो oospore होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉइल में भी जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि सॉइल में एंटर करके सॉइल में भी जर्मिनेट हो जाते हैं, या फिर हो सकता है सॉइल में वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। एक तो आपका सीड बॉर्न हो गया कि वह एक्सटर्नली जो oospore और माइसीलियम है वो एक्सटर्नली सीड के सरफेस पे प्रेजेंट हो, और सीड बॉर्न हो जाने के बाद आपकी फील्ड में डिसीज़ हमने जब सोइंग किया तो जो आपका जो सीड हमने सोइंग किया था वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, और जब उससे जो प्लांट सीडलिंग प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, वो भी इन्फेक्टेड होगा। तो जो उसमें ईयर्स बनेंगे वो क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। तो इस तरह से जब हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करेंगे, क्रॉप को रिमूव करेंगे, तो क्या करेगा, उसका कुछ प्लांट डेब्रिस फील्ड में कभी रह जाता है वो, या हो सकता है वो कोई प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है। तो उस प्लांट के किसी भी पार्ट में क्या होता है, oospore प्रेजेंट oospore रह जाता है, और वो एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का रोल प्ले करता है। तो ये था प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वह होता है स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया के कारण। मीनिंग कि जो oospore है वो कैसे हो रहा है, वो सेक्सुअल स्पोर के कारण हो रहा है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है वो हो रहा है एसेक्सुअल स्पोर्स के कारण। तो जो एसेक्सुअल स्पोर है उसमें क्या होता है, जो स्पोरेंजिया है वो या तो विंड और वाटर और इंसेक्ट के थ्रू डिसेमिनेट हो जाता है, बट मोस्टली ये क्या होता है, जो कि है विंड बॉर्न, इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो विंड बॉर्न है, तो ये मोस्टली विंड के थ्रू डिसेमिनेट और फैल जाता है।
नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि डिसीज साइकिल में किस तरह से डिसीज़ आपका प्लांट में उसका डिसीज साइकिल देखने को मिल सकता है। जिसके आप देख सकते हैं कि इन्फेक्टेड सीडलिंग क्या होगा, प्रोड्यूस स्पोरेंजियोफोर, यानी कि जो ग्रीन ईयर बना रहे हैं उसमें स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो स्पोरेंजियोफोर प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, स्पोरेंजिया, इसमें आप स्पोरेंजियोफोर का बहुत ही क्लियरली डायग्राम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था, जो उनका एपेक्स होता है वह क्या होता है, डिवाइडेड होता है और 3 to 4 शॉर्ट ब्रांचेस, ये जो छोटे छोटे शॉर्ट ब्रांचेस दिख रहे हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, इसे ही हम कहते हैं स्ट्रिग्मा। और ये स्ट्रिग्मा के ऊपर आपकी, जैसे कि ये 4 देख सकते हैं, इसमें 4 स्पोरेंजिया बियर किए हुए हैं। तो ये था आपका स्पोरेंजिया। जैसे कि हमने देखा कि ये क्या है, नेक्स्ट साइकिल में हम देखते हैं कि किस तरह से जो इन सिस्टमिकली इन्फेक्टेड ग्रीन ईयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये ग्रीन ईयर प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ऊस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये ऊस्पोर क्या कर रहे हैं, या तो सीड के थ्रू या तो सॉइल के थ्रू फिर से नेक्स्ट सीजन में स्प्रेड हो जाएंगे, या फिर एयर के थ्रू डेसिमिनेट होके और फील्ड में प्रेजेंट और हेल्दी प्लांट्स को या फिर अनदर हेल्दी फील्ड को इन्फेक्ट कर देंगे। इसके अलावा स्पोरेंजिया से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जो स्पोरेंजिया होते हैं उसके अंदर ही जूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया के अंदर जो बहुत सारे स्पोर्स हैं वो होते हैं जूस्पोर। और ये जूस्पोर कैसे होते हैं, बाइफेजिलेट होते हैं। सो ये था डिसीज साइकिल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन। सो जो इसका फेवरेबल कंडीशन है, मोस्टली जो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वह 85% से ऊपर होना चाहिए डिसीज डेवलपमेंट के लिए। और जो टेम्परेचर है वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा लाइट ड्रिजलिंग भी विथ कूल वेदर भी हाई फेवरेबल है इस पैथोजन के लिए। सो ये डिफरेंट कंडीशन डिसीज़ के डेवलपमेंट को बहुत ही फेवर करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट, किस तरह से इस डिसीज़ को मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रेशन इन डेट ऑफ प्लांटिंग, यानी कि हम अर्ली प्लांटिंग कर सकते हैं। अर्ली प्लांटिंग में क्या होगा कि जो वेदर होता है वो हम जो इसका फेवरेबल कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, स्केप कर सकते हैं। जो डिसीज़ का जो डेवलपमेंट है या तो वो कम होगा या तो वो रुक जाएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन इन प्लांटिंग मेथड। हम जो प्लांटिंग मेथड है उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो जिससे क्या होता है, मोस्टली हम इसमें जो मोनोकल्चर और डायरेक्ट सोइंग है उसको अवॉइड करेंगे। इसके अलावा रॉगिंग और गैप फिलिंग और डीप प्लाविंग, यानी कि रॉगिंग यानी कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है या इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस जो फील्ड में प्रेजेंट है उनको हमें फिर से रिमूव करना है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना है। इसके अलावा जो गैप फिलिंग, हमें प्लांट टू प्लांट के बीच में, अगर मान लीजिए किसी 2 प्लांट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें उसके उन दोनों प्लांट्स के बीच में गैप फिलिंग करनी है। गैप फिलिंग से क्या होगा कि अगर एक आध पौधा हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि हमने प्लांट की जो रो टू रो या फिर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हमने सही लगाया था, लेकिन अगर कोई इनमें से कुछ प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इन नुकसान को ना हो सके तो हमें क्या करना है, जो जो प्लांट ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं उन प्लांट को हमें रिमूव करके उनकी जगह हेल्दी सीड्स को सोइंग कर देना, जिससे गैप फिलिंग भी हो जाएगी और हमारा ग्रेन लॉस भी बच जाएगा। इसके अलावा डीप प्लाविंग, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न है तो हमें समर के टाइम में, जो कि यह हमें रेनी सीजन में लगा रहे हैं, तो हमें समर के टाइम में क्या करना है कि डीप प्लाविंग कर देना है, जिससे जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस हैं वो सन के कांटेक्ट में आके अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके अलावा रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ग्रीन ईयर है वो ड्राई होकर पॉटरी मासेस में कन्वर्ट हो जाता है और फिल्म में अगर वो हवा के थ्रू गिर जाए या फिर उड़ जाए तो उसको जो ट्रैवल कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हमें एक मेथड अपनाना है कि जो इन्फेक्टेड टिश्यू या इन्फेक्टेड प्लांट है उसको फिर से बहुत ही केयरफुली रिमूव कर देना है और उसे डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि वो अन्य हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट ना करे। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, मोस्टली डिसीज़ में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन बहुत ही मददगार का मेथड साबित होता है, क्योंकि अगर हम हर सीज़न में अलग अलग तरह के क्रॉप लगाते हैं, जैसे कि सीरियल्स, फिर पल्सेस और फिर वेजिटेबल्स, तो इस तरह से क्या होता है, डिसीज़ को उनका होस्ट ना मिलने से वो डिसीज़ अपने आप ही स्केप हो जाते हैं। इसके अलावा जो लो लेइंग फील्ड्स हैं उनको अवॉइड करना, मीन्स कि जो लो लेइंग फील्ड्स हैं उनमें हमें इस तरह के क्रॉप को नहीं लगाना है, पर्ल मिलेट को नहीं लगाना है, क्योंकि इस तरह के फील्ड में क्या होता है, वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वह कम होती है। यानी कि वाटर लॉगिंग जो क्या होता है और डिसीज़ को किसी तरह से इंसिडेंस को
रोक देता है, इसलिए हमें लो लोइंग फील्ड्स को अवॉइड करना है। इसके अलावा क्या है, सीड बॉन्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि एक केमिकल ट्रीटमेंट है। केमिकल ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, सेरेसिन और कैप्टाफॉल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है साइंटिस्ट की तरफ से, जो कि सीड मीन्स हमें सीड ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सीड बॉन्ड अगर उसमें पैथोजन है, यानी कि उसमें उसको प्रेजेंट है सीड्स में, तो वो अपने आप ही वायबल नहीं रहेगा और मर जाएगा। सो इसके अलावा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मिलेट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू सीड ट्रीटमेंट रिकमेंड किया गया है, जिसमें एग्रोसॉन GN 0.1% प्लस थायरम 0.4% दोनों ही डिसीज़ को 50% तक कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम एग्रोसॉन और थायरम दोनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ सी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो यह डिसीज़ को 50% तक कंट्रोल कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। इसके अलावा गुप्ता और वर्मा ने सीड ट्रीटमेंट को एप्रॉन SD35 @2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के लिए सीड डिसीज़ कंट्रोल के लिए बताया है। इसके अलावा क्रूड एक्सट्रैक्ट हम जब किसी प्लांट मटेरियल से या किसी तरह के मटेरियल से हम जब उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्रूड एक्सट्रैक्ट। तो क्रूड एक्सट्रैक्ट ऑफ एजाडी रेक्टा और ओसियम एलियम, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सीड ट्रीटमेंट। इसके अलावा हम कुछ फॉलोइंग मेंशन रेसिस्टेंट वैरायटी कल्टीवर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ICMH 88088 बाई ICRISAT हैदराबाद 5। और इसके अलावा हम डिफरेंट वैरायटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए। तो ये था इसका मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, हम एरगट के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ लिया डाउनी मिल्ड्यू, जिसे हम ग्रीन ईयर भी कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ग्रीन ईयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसे ग्रीन ईयर भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नेक्स्ट और एक डिसीज़ का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।